Hello students, we are doing chapter unit foreign exchange and balance of payment. foreign exchange हम already complete कर चुके हैं. इसी से related हमारा chapter है BOP, balance of payment. What is balance of payment? balance of payment ये chapter सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं. तो पहले हम सारा टॉपिक चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे. बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस करता है. इंडिया से जितना पैसा बाहर जा रहा है और बाहर से जितना पैसा इंडिया आ रहा है, उसकी बुक कीपिंग, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उनके अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, दैट इज नथिंग बट बैलेंस ऑफ पेमेंट. पेज नंबर 120, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेज 120. International trade has worked as an engine of growth since ages and it continues to make significant contributions to economic growth. International economics, international trade बहुत सालों से कंट्री को हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए, both in developed and developing countries. The basis of international trade lies in the difference between comparative advantages, as explained by Adam Smith, that nations enjoy in production of certain commodities. Balance of payment की importance वहाँ से नज़र आती है जब हम इकोनॉमिक्स, डिफरेंट इकोनॉमीज, नेशंस के एडवांटेजेस देखें. जैसे इंडिया में टी की प्रोडक्शन ज़्यादा है, अफ्रीका में नट्स, ड्राई फ्रूट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा है. अब अगर हम ड्राई फ्रूट्स की प्रोडक्शन करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की प्रोडक्शन करने के लिए इंडिया का क्लाइमेट वैसा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है. सो हियर कम्स BOP. हम टी बेचेंगे, सॉल्ट बेचेंगे, फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे, ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट करेंगे और वही फॉरेन करेंसी हम उन्हें वापस करेंगे. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट हम पहले कर चुके हैं, उसको यूज कैसे किया जाता है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. उसको अकाउंटिंग सेंस में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. International trade advocates specialization in production of certain goods and promotes efficiency of production process, making goods available at cheaper price. If we produce dry fruits, the price would be very high in India, being higher raw material cost or due to climatic conditions. And hence it is better to import from other countries, but we will not give our money. We will spend the money which we have earned by exporting our goods. It is a win-win situation for every country. That is just the part why international economics is important. Moving to balance of payment. What is balance of payment? ये एक अकाउंट होता है, एक स्टेटमेंट होती है like this. इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट भी कहते हैं. This side is known as debit side and this side is known as credit side. कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between two persons, one from our country, other from another country, both persons are from India, BOP में रिकॉर्ड नहीं होगा. both persons are from America, BOP में रिकॉर्ड नहीं होगा. One person from India, other person from America. 1, 2. There should be economic transaction. Money involve होनी चाहिए. Business transaction नहीं, economic. Business transaction होता है जो business से डील करे. Economic होता है जिससे पैसा डील करे. So it should be economic transaction like charity donation also. 3. पैसा आ रहा है या जा रहा है. अगर फॉरेक्स इंडिया में आ रहा है, it will be recorded in the credit side. और अगर फॉरेक्स जा रहा है ड्रॉइंग्स, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड.
Forex is foreign exchange. So balance of payment is a systematic record of all the economic transactions between resident of a country and resident of rest of the world, ROW, related with goods, services, incomes, assets, liabilities, etc. कोई भी पर पैसा डील होना चाहिए उसे. The balance of payments of a country is a systematic record of all economic transactions visible. Please underline visible, मतलब goods. Invisible, मतलब कि services. And transfers, मतलब सिंगल साइडेड आइटम. इंडिया ने नेपाल को डोनेशन दे दिया, अमेरिका ने इंडिया को डोनेशन दे दी. इट्स अ ट्रांसफर. सो विजिबल आइटम इज गुड्स, इनविजिबल आइटम्स आर सर्विसेज. ट्रांसफर्स दो तरह की होती हैं, करंट एंड कैपिटल. ट्रांसफर्स दो तरह की होती है, करंट एंड कैपिटल. करंट मीन्स छोटी अमाउंट की, कैपिटल मीन्स बड़ी अमाउंट की. Between its residents and residents of the foreign countries during the given period of time. एक साल के अंदर जितनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं between the person of a country and the persons of other countries in a systematic order, whether they deal with goods or services or transfers, is known as balance of payment. Cool? बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफ़ी कुछ आता है. अगर हम सिर्फ गुड्स की बात करें तो उसे कहेंगे BOT, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस which are concerned with visible items between residents of a country and residents of rest of the world. Please underline visible items. Underline करके लिखिए goods. So what is balance of trade? ये एक systematic record है सभी economic transactions का जो visible items के साथ डील करती हैं, सिर्फ goods के साथ डील करती हैं, between one country and other residents, other resident of a country, resident of rest of the world. Clear everyone? So what is balance of payment? Deals with goods, services, transfers. And what is balance of trade? Deals only with goods. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में नॉर्मली ये 3 to 4 मार्क्स में आता है. प्लीज मार्क स्टार. Difference between balance of payment and balance of trade. Please mark star. Difference between BOP and BOT. Meaning, balance of payment records all economic transactions between resident of a country and resident of ROW. पेपर में आपने ROW नहीं लिखना है, आपने लिखना है rest of the world. Whereas BOT record all economic transactions that are concerned with visible items between resident of a country and rest of the world. So BOP is underline all economic transactions. BOT is all economic transaction deal with goods. Components. BOP includes all economic transactions, that is visible items, invisible items, transfers, whereas BOT includes only visible items. Third, capital transactions. Capital का मतलब होता है जिससे एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़े, काफी बड़ी अमाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस जाती हैं. जैसे इंडिया की कंपनी ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया या अमेरिकन कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया. बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस नहीं जाती. BOP records all transactions of capital nature, whereas BOT does not record any transaction of capital nature. Please underline capital nature. Underline करके लिख लीजिए.
which affects assets and liabilities, which affects assets and liabilities. Scope. BOP has wider scope and it includes BOT. BOP बड़ा स्कोप है क्योंकि उसमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें BOT इंक्लूडेड ही है क्योंकि BOP में गुड्स आते हैं. Whereas BOT shows the narrower scope, is a narrower scope as it is a part of BOP only. Thus, BOP offers more comprehensive picture of an economy. Please underline more comprehensive picture. तो अगर किसी कंट्री की पिक्चर पे ध्यान देना है कि कौन सी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छा काम कर रही है, विच कंट्री इज बेटर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, विल सी BOP, नॉट BOT. अकाउंटिंग सेंस, BOP is equal to balance of visible items, balance of invisible items plus capital transfers, whereas BOT is balance of visible items. कुछ इस तरीके से होता है. सी import of goods 1000, export of goods 500, import of services 750, export of services 1250 or 1200. कैपिटल ट्रांसफर्स फेवरेबल या ट्रांसफर्स, दोनों तरह की ट्रांसफर्स होगी. फेवरेबल 700, ट्रांसफर्स अनफेवरेबल 750 और 850. क्लियर? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड. ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस का बैलेंस कितना आ रहा है, जितने पैसे इंडिया में आ रहे हैं माइनस जितने पैसे इंडिया से जा रहे हैं. फॉर्मूला देखिए नोट्स में क्या गिवन है. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स. व्हाट आर विजिबल आइटम्स? गुड्स. जो पैसा आ रहा है प्लस जो पैसा जा रहा है माइनस. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स. 500 माइनस 1000 माइनस 500. सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? माइनस 500. मतलब इस कंट्री से 500 करोड़ डॉलर, 500 बिलियन डॉलर, वट एवर द यूनिट इज, डॉलर, बिलियन, अरब, वट एवर द यूनिट इज, 500 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चले गए. जितना भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में था 500 करोड़ चला गया. एंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट्स बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स प्लस balance of invisible items plus transfers. Balance of visible items, कितना पैसा विजिबली आया है. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 500 माइनस 1000. फॉर्मूला देखिए लिखे, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स प्लस कैपिटल ट्रांसफर्स प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स. हाउ मच आर इनविजिबल आइटम्स? दिस. एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स प्लस ट्रांसफर्स फेवरेबल, जो पैसे आए माइनस जितने पैसे गए. So this is balance of goods, this is balance of services,
This is balance of capital nature items, transfers. So minus 500 plus 450 minus 150 is equal to minus 200. Got it? न्यूमेरिकल नॉर्मली पेपर में नहीं आते, एक एक नंबर का आएगा, जब वो हम सम्स करेंगे आपको पता चलेगा कैसे। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो करना है, द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल नेचर ट्रांसफर सभी आती हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स आते हैं। और बैलेंस निकालते कैसे हैं? जो पैसा इंडिया में आ रहा है, पैसा कौन सा आएगा? फॉरेक्स। जो फॉरेक्स इंडिया में आ रहा है प्लस जो फॉरेक्स इंडिया से जा रहा है माइनस। Should we proceed? Good. बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं उन्हें तो पता ही है अकाउंट क्या होता है। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट एक हेड के अंदर एक जैसी ट्रांजैक्शंस को डाल दिया जाता है। जैसे आपने मेरे को फीस दी, राम ने मेरे को फीस दी, तो उस अकाउंट में पूरी डिटेल्स हो जाएंगी। राम ने कौन सी डेट को किस तरीके से फीस दी, उसने कब ज्वाइनिंग की, नेक्स्ट फीस पेटीएम से आई या फिर बैंक से आई या कैश में आई। सो बेसिकली अकाउंट में सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस उस रिलेटेड पर्सन की होती हैं। बाकी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है करंट नेचर का और एक होता है कैपिटल नेचर का। पहले हम करंट नेचर को पढ़ते हैं। फर्स्ट विल रीड आउट करंट नेचर। Page number 121, current account. Current account records import and export of goods, services and unilateral transfers. Unilateral मतलब single side transfer. The main components of current account are, please underline, goods, services and transfers. ये तीन है, वही तीन components हैं। The first is export and import of goods. करंट अकाउंट में पहली चीज आएगी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पैसे अगर इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया था, तो वो इस तरफ रिकॉर्ड होगी। मैं टू और बाय नहीं लगा रहा हूं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक साल में जितने पैसे आए। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंडिया में जितने पैसे गए, इंडिया से जितने पैसे गए। राइट साइड को कहेंगे क्रेडिट साइड, फेवरेबल साइड क्योंकि पैसे आ रहे हैं। लेफ्ट साइड को कहेंगे डेबिट साइड, अनफेवरेबल साइड, लेफ्ट साइड। सिमिलरली सर्विसेज से जितने पैसे आ रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, शाहरुख खान ने किसी हॉलीवुड मूवी में काम किया,
शाहरुख खान ने किसी हॉलीवुड मूवी में काम किया तो शाहरुख खान को पैसे मिलेंगे, फॉरेन कंपनी शाहरुख खान को पैसे देगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सिमिलरली शकीरा ने मुंबई में कॉन्सर्ट में आके परफॉर्म किया तो इंडियन कंपनी शकीरा को, जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है या सेलिब्रिटी है, उनको पेमेंट करेगी, पैसे जाएंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वी हैव इंपोर्टेड द सर्विसेज। और ये 1 साल का पूरा रिकॉर्ड होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। जितना फॉरेक्स इंडिया में आया है यूनिलैटरल ट्रांसफर की वजह से, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, हमने कोई डोनेशन रिसीव की होगी, जैसे कि अभी कोविड-19 में पीएमओ ऑफिस ने एक अकाउंट नंबर दिया था और बोला था कि आप डोनेशन दीजिए। एनआरआईज ने जो डोनेशन दी है, एनआरआईज ने डोनेशन दिया मतलब वहां से पैसा इंडिया में आया है। क्रेडिट साइड, फेवरेबल साइड, राइट साइड, क्योंकि पैसा इंडिया में आ गया। उसी तरीके से अगर हमने डोनेशन की है तो पैसा चला जाएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड, राइट। सो जितनी रिसीविंग हुई और जितनी पेमेंट हुई। एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट सर्विसेज के अंदर ही आता है। हम सेपरेटली इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, अदरवाइज इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज ओनली। इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, व्हाट डज दैट मीन? मैंने दुबई में एक प्लॉट लिया हुआ है, एक फ्लैट लिया हुआ है। आई हैव परचेज्ड अ फ्लैट इन दुबई। उस फ्लैट में दुबई के पर्सन रह रहे हैं, वो मेरे को रेंट दे रहे हैं, वो रेंट मेरे को आ रहा है और मैं एक इंडियन हूं। इज इट अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या पैसे डील कर रहे हैं? यस, इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कौन कौन से 2 पर्सन डील कर रहे हैं? एक मैं और एक वो पर्सन, बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। It is an economic transaction that deals with resident of a country and resident of rest of the world. Asset liabilities पे फर्क आ रहा है? No. Goods पे फर्क आ रहा है? No. Services पे फर्क आ रहा है? No. Is it a charity or donation? No. It is rent received from Dubai flat. Dubai flat से जो rent आएगा, that is my income. Similarly, वाइस वर्सा, यहां पे एक लैंड है मिस्टर सिंह का, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में पीआर मिल जाती है, कनाडा में पीआर मिल जाती है। ये वाला जगह उन्होंने किसी पर्सन को रेंट पे दे दी, तो ये पर्सन जब रेंट देगा मिस्टर सिंह को, पर मिस्टर सिंह तो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, मतलब रेजिडेंट ऑफ आरओडब्ल्यू है, तो इंडिया का पैसा बाहर चला जाएगा। That is investment income paid. We have paid the investment income. पैसा जाएगा फॉरेक्स में, क्योंकि हम रुपए देंगे कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक आरबीआई को देगा रुपया, आरबीआई उनके सेंट्रल बैंक को देगा डॉलर, फिर वो ही डॉलर मिस्टर सिंह के कमर्शियल बैंक में आ जाएंगे। सो फॉरेक्स इंडिया से चला गया। दिस इज हाउ करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। Current account records import of goods, services and unilateral transfers. The main components of current account are: number 1, export and import of goods, merchandise transactions or visible trade. A major part of transactions in foreign trade is in the form of export and import of goods, that is visible items. Payment for import of good is written on the negative side. जितने पैसे इंडिया में जा रहे हैं वो नेगेटिव साइड, अनफेवरेबल साइड डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। प्लीज अंडरलाइन, नेगेटिव साइड को लिख दीजिए, अनफेवरेबल साइड, एंड रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इज शोन एज पॉजिटिव साइड। व्हाट इज पॉजिटिव साइड? फेवरेबल साइड।
बैलेंस ऑफ दिस विजिबल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन दोनों के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाएगा। इंडिया में 10,000 करोड़ रुपए आ गए, 8,000 करोड़ चले गए, तो 10,000 माइनस 8,000 2,000 आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल ट्रेड। इट इंक्लूड्स लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज मतलब बंदा टैलेंट की वजह से, एंटरप्रेन्योर स्किल्स की वजह से पैसा कमाता है, जगह की वजह से पैसा नहीं कमाता, कैपिटल की वजह से पैसा नहीं कमाता। सोल्ड एंड परचेज्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल दिया था, शाहरुख खान इज वर्किंग इन हॉलीवुड मूवी और जॉन स्मिथ इज वर्किंग इन बॉलीवुड मूवी। Payments are either received or made to other countries for the use of these services. Basically, services are of these three kinds: shipping, banking, insurance. Services वैसे ये सबसे मेन है। 90 to 95% जो सर्विसेज की अमाउंट है वो तीन हेड्स में आती हैं: बैंक्स, इंश्योरेंस एंड बैंक शिपिंग। बाकी ये जो मैंने बताया टीचिंग या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस, ये तो बहुत छोटी अमाउंट होती है, मिसलेनियस। पेमेंट फॉर दिस सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड। जो पैसे इंडिया से जा रहे हैं नेगेटिव साइड, एंड पेमेंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, वन साइडेड ट्रांजेक्शंस। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट्स, डोनेशंस, पर्सनल रेमिटेंसेस, वन वे ट्रांजेक्शंस। आपके फ्रेंड ने बाहर पैसे कमाए, नॉट फ्रेंड, आपके ब्रदर ने बाहर पैसे कमाए, यहां इंडिया भेज दिए, तो दैट इज यूनिलैटरल रिसीव्ड। और यहां से पैसे कमा के बाहर भेज दिए, दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड। दिस रेफर्स टू द receipts and payments will take place without any service in return. Please underline without any service. So it is not a business transaction, it is an economic transaction. डबल साइड काम नहीं हुआ, सिंगल साइड हुआ है, पर पैसा डील कर रहा है, so it is economic transaction. Receipt of unilateral transfers to the ROW is shown on the credit side, and unilateral transfer from to rest of the world is on the debit side. Debit is called left hand side, negative side, unfavorable side. Credit is known as right hand side, favorable side. Credit side. Income receipt and payment to and from abroad. It includes investment income in the form of interest, rent, profits. मैंने फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदे, उन्होंने मुझे डिविडेंड दे दिया। फॉरेनर्स ने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे, उन्होंने डिविडेंड दे दिया। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। This is how current account is prepared. Current account deals with recurring items. Goods, services, transfers. 4 components: goods, services, transfers and investment income. That can be ignored. But basically there are 4 components. Services के अंदर 3 हैं, which are banking, insurance, shipping. इसी तरीके से सेकंड बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉपर हम पढ़ते हैं, पहले हेडिंग्स पढ़ता हूं मैं। पेज 122 ओपन कीजिए। फर्स्ट इज लोन्स, सेकंड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज चेंज इन फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स। फर्स्ट इज लोन्स। अगर इंडिया से लोन दिया जा रहा है तो यहां रिकॉर्ड होगा। अगर इंडिया में लोन लिया जा रहा है तो यहां रिकॉर्ड होगा। आई एम नॉट सेइंग इंडिया ने HDFC बैंक से या इंडिया ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन ले लिया, ये उस चीज़ की बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, इंडिया ने अमेरिका से लोन लिया, पाकिस्तान ने चाइना से लोन लिया, बट वो पाकिस्तान और चाइना के BOP में रिकॉर्ड होगा, इंडिया के नहीं। और हमने भी लोन दिया, उसमें 2 तरह के, वो हम बाद में पढ़ते हैं। देन इज इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, और या हमने इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डन। मैंने दुबई में जाके एक फ्लैट खरीदा तो पैसा बाहर जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डन।
वो फ्लैट, मैं भी इंडियन हूं, वो मैंने रेंट पे दे दिया, मुझे रेंट रिसीव हुआ, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। मैंने बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डन। उस शेयर्स पर उस कंपनी ने मुझे डिविडेंड दे दिया, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। और इसका वाइसा वर्सा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की गई, बाहर की कंपनी ने इंडिया में एफडीआई की, यू नो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो जो प्रॉफिट कमाया वो अपनी कंट्री में ले गए, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, प्रॉफिट्स टेकन बैक टू द कंट्री। डोमिनोज की कैपिटल जो इंडिया में है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट प्रॉफिट वो घर लेके जाएंगे, दैट इज इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। एक और आएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसको भी हम साइड पे करते हैं, पहले कैपिटल अकाउंट को पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट which records all such transactions between residents of a country and rest of the world which cause a change in the assets or liability status of the resident of a country or its government। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेंज करता है। कंट्री के जितने एसेट्स हैं या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के जितने एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, उनको जो चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, जिस अकाउंट में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट आर, नंबर 1 बोरोइंग्स, लोन्स। These are transactions, borrowings and lending of funds are divided into two transactions. These are private transactions and official transactions. First, private transactions. दो तरह के लोन्स होते हैं, रिकॉर्ड कहाँ होते हैं वो मैंने बता दिया। दो तरह के लोन्स होते हैं, जो मैं लोन लेता हूँ, मेरी कंपनी लोन लेती है, मेरा बिजनेस लोन लेता है, या हमारी गवर्नमेंट लोन लेती है। अगर हम लोन ले रहे हैं दैट इज प्राइवेट, मेरी कंपनी लोन ले रही है दैट इज प्राइवेट। अगर पंजाब गवर्नमेंट लोन ले रही है या इंडियन गवर्नमेंट लोन ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले रही है, दैट इज ऑफिशियल प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। These are transactions that are affecting assets or liabilities by individuals, businesses, etc. and other non-government entities. The bulk of foreign investment is private. For example, यहाँ पे लिख लीजिए the bulk of foreign loans, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखे, बेसिकली इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है। अगर हम लोन दे रहे हैं तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें ब्याज मिलेगा। यस और नो, जो लोन देते हैं उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड सिमिलरली रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। हमने लोन रिसीव किया या जो लोन हमने दिया था वो वापस आ गया। All transactions of lending to abroad by private sector and similarly repayment of loans to abroad by private sector is recorded on the negative unfavorable debit or left hand side। हमने जितना लोन रिसीव किया प्राइवेट सेक्टर ने, जितना लोन दिया या फिर जो लोन पहले लिया था वो वापस कर दिया, दोनों में एसेट लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है ना। When we say asset liability we don't consider cash paying। आप ऐसे ले सकते हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। Official transactions, transactions affecting assets and liabilities of the government and its agencies. For example, all transactions relating to borrowings from abroad by government sector and similarly repayment of loans by foreign government are recorded on the positive side. All transactions of lending to abroad by government sector and similarly repayment of loans to abroad by government sector is recorded on the negative or debit side. इंडिया की गवर्नमेंट ने जो लोन लिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो लोन किसी को दिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था वो वापस कर दिया, जिस साल वापस किया। इंडिया की गवर्नमेंट ने जो श्रीलंका को लोन दिया था वो वापस ले लिया, इस साल वापस आ गया। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड।
Foreign investments are divided into two types. These are foreign direct investment and portfolio investment. आपने वर्ड सुना होगा FDI, foreign direct investment. वो क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बाहर की कंट्रीज ने, बाहर के एंटरप्रेन्योर्स ने, बाहर के वेंचर कैपिटलिस्ट ने इंडिया में इन्वेस्ट किया और सारी की सारी कैपिटल का राइट उन्हीं का है. दे कैन वर्क फ्रीली लाइक अस. जैसे इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री की अभी एफडीआई नहीं है, 100% एफडीआई नहीं है. इंडिया में जो सैटेलाइट्स बनती है उसमें एफडीआई नहीं है. बट आपने बेस्ट प्राइस सुना है, ये एफडीआई के अंदर आ रहा है. रिटेल फूड बिजनेस एफडीआई के अंडर आ चुका है 100%. वॉलमार्ट की अमेरिकन कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है. सो दैट मीन्स जैसे मैं यहां पर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के अपना पूरा राइट रखता हूं, मैं लैंड ले सकता हूं, लेबर रख सकता हूं, प्रॉफिट अपने घर पे लेके जा सकता हूं, बिल्कुल वही रूल्स पर अगर फॉरेनर्स काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बट अगर वो काम कर सकते हैं बट उनका पूरा राइट नहीं है, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. जैसे मिस्टर एक्स जो फॉरेनर है, मिस्टर एक्स जो फॉरेनर है, उसने 100% शेयर्स खरीद लिए या 90% शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के, तो दैट इज एफडीआई. एक तो शेयर्स उसके, मैनेजमेंट के डिसीजन उसके. अगर मिस्टर एक्स ने 20% शेयर्स खरीदे रिलायंस के या एयर इंडिया खरीद ली 20% शेयर उसका, एसेट उसका, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. बट मैनेजमेंट डिसीजन उसके पास होगा जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स होंगे. सो एफडीआई मींस आपने 50% से ज्यादा शेयर्स कंपनी खरीद ली है. पोर्टफोलियो मींस शेयर्स आपके, एसेट्स आपका, प्रॉफिट आपका, बट मैनेजमेंट डिसीजन आपके नहीं. एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, it refers to purchase of an asset in ROW such that it gives direct control to the purchaser of the asset. For example, acquisition of a firm in the domestic country by a foreign country's firm. British Airways एयर इंडिया खरीद ले, पॉसिबल. जैसे इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, आजकल एयर ट्रैवल डिमांड में आ रहा है रेलवेज की जगह. टाइम बहुत सेव होता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है. एयर इंडिया सेल हो रहा है, ब्रिटिश एयरवेज देखते हैं कि ये मार्केट अनटैप है. इंडिको, स्पाइस जेट एंड गो एयर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे इंडिया में. सो एयर इंडिया सेल हो रहा है और ब्रिटिश एयरवेज सारी की सारी एयर इंडिया खरीद ले और डिसीजन ले कि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे, सिर्फ डोमेस्टिकली ऑपरेट करेंगे. सो सेल ऑफ एयर इंडिया टू ब्रिटिश एयरवेज इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पैसा इंडिया में आएगा. Acquisition of a firm in the domestic country by a foreign country's firm. 2. Transfer of funds from the parent country abroad to a subsidiary company in the domestic country. दो कंपनीज है, एक पेरेंट कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी. मैकडोनल्ड्स एक पेरेंट कंपनी है. मैकडोनल्ड्स की उन्होंने इंडिया में एक कंपनी खोलनी है, सब्सिडरी कंपनी, जिसमें बीफ और पॉक नहीं होगा, तो दैट इज एफडीआई. तो मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये सब सब्सिडरी कंपनीज हैं. इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो अमेरिका में है, सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है, बट उनका जो मेन्यू है वो इंडिया के हिसाब से सेटल होता है, बीफ पॉक नहीं होता है. तो जिस वजह से वो पैसा इंडिया आ रहा है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यू हैव द एसेट बट यू डोंट हैव द कंट्रोल, फुल कंट्रोल ओवर दैट एसेट. इसको मैं माइक्रो लेवल पे समझाता हूं. मैंने कार खरीदी लोन पर, मैंने कार खरीदी कैश पे. अगर मैंने कार कैश पे खरीदी, कार मेरी, मैं यूज कर रहा हूं, मैं जब मर्जी बेच सकता हूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मैंने कार खरीदी लोन पर, कार मेरे पास है, मैं यूज कर रहा हूं, बट मैं बेच नहीं सकता क्योंकि ईएमआई चल रही है, मेरे पास एनओसी नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है. दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. आई हैव द कार, आई हैव द एसेट, आई कैन शो दैट इन माई बैलेंस शीट, बट I do not have the right to sell that. I don't have control of that. Portfolio investment refers to the purchase of financial asset by the foreigners that does not give the purchaser control over the price. Please underline, does not give the purchaser control over the asset. Asset के ऊपर control नहीं होता. A foreign and institutional investment is also the part of portfolio investment.
व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट? एक फॉरेन कंपनी ने एक इंस्टीट्यूट बनाया, उसकी इन्वेस्टमेंट की. फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, परचेज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इट इज ट्रीटेड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मैंने फेसबुक के शेयर्स खरीद लिए, मैंने व्हाट्सएप के शेयर्स खरीद लिए, मैंने स्नैपचैट के शेयर्स खरीद लिए. इट डज नॉट मीन स्नैपचैट के मैं डिसीजंस ले सकता हूँ. दिस इज माई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. आई हैव परचेज 10 शेयर्स, 20 शेयर्स. शेयर्स मतलब मेरा कंपनी में पार्ट बन गया है, बट आई कैन नॉट टेक द डिसीजंस ऑफ दैट बिकॉज आई हैव वेरी लेस नंबर ऑफ शेयर्स. एग्जाम्पल ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. Investment by rest of the world in shares of Indian companies real estate in India are recorded on the positive side. अगर इंडिया के रियल एस्टेट में फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया की कंपनीज में फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, तो फॉरेक्स आ रहा है क्रेडिट साइड एज दे ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैनी कंपनीज जो चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही थी, इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोच रही है. और एक कंट्री है लग्जमबर्ग. उस स्पेस, जितनी स्पेस है लग्जमबर्ग कंट्री की, उतनी जगह इंडिया की गवर्नमेंट ने साइड पे रख दी है, सिर्फ उन कंपनीज के लिए जो चाइना से इंडिया में आएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करे. यस, न्यूज़ में नहीं दिखाते बिकॉज पॉजिटिव न्यूज़ है, वो नेगेटिव ही दिखाते. और जिसमें से 10 से 12 कंपनीज ने साइन भी कर दिया है कि अग्रीमेंट कि हम 1-2 सालों में आ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज दे हैव टू सेल, डिसइन्वेस्ट देयर एंड कम हियर. सो दिस इज समथिंग इन्वेस्टमेंट बाय ROW इन इंडिया. Similarly, investment by Indian residents in shares of foreign companies real estate abroad are recorded on the negative side. Investment to and from abroad includes 2 types of investments. और वो 2 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट कौन सी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं? FDI एंड पोर्टफोलियो. लिख लीजिए. इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. कॉलन की जगह सेमी कॉलन डाल दीजिए. कॉलन की जगह सेमी कॉलन डाल दीजिए. लिखे FDI एंड PI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. क्लियर? अब मैं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को नहीं पढ़ रहा हूं, अभी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं. अभी समझाना मुझे टफ होगा. उससे पहले मैं इन अकाउंट्स को क्लोज करना सिखाऊंगा, फिर हम उसे पढ़ेंगे. जी, अब अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं? इस साइड का टोटल किया जाएगा. अमाउंट्स लिख देते हैं. 1000, 2000, 3000, 4000, 1200, 1200, 1200, 1200. एज्यूम कर लो. इंडिया में कितना पैसा आया? 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10,000. इंडिया में कितना पैसा आया? 10,000. और इंडिया से कितना पैसा गया? 12 12 12 12 4800. मैं आपको करवा रहा हूं करंट अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं. इस साइड का टोटल आ रहा है 10,000. फॉरेक्स इन, इंडिया में इन 10,000 करोड़ आया क्रेडिट साइड, और 4800 डेबिट साइड. फॉरेक्स आउट चला गया. डिफरेंस इज 5200 डेबिट साइड. बराबर करना होता है, बैलेंस करना होता है अकाउंट को. अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को पता है. डिफरेंस आ रहा है उस तरफ, हम लिख देंगे 5200 बैलेंस, और इसे बराबर कर देंगे. अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, तो इसे करेंगे BOP पॉजिटिव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है.
और अगर क्रेडिट साइड छोटा है, डेबिट साइड बड़ा है, तो हम कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। इंडिया में पैसा आया 10,000, गया 4800, तो दैट इज क्रेडिट इज मोर फेवर। क्रेडिट 10,000, डेबिट 12,000, अनफेवर, 2,000 शॉर्ट है। हमने माना 5200 आ गया। क्लियर? हमारा करंट अकाउंट क्लोज हो गया और इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब 5200 रुपीज इंडिया में आए हैं। यस और नो? 10,000 आया, 4800 चला गया, मतलब 5200 रुपीज इंडिया में ज्यादा आए हैं। वो ज्यादा किसके पास होंगे? आरबीआई के पास। ये वाला बैलेंस, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए। 10,000 करोड़ इंडिया में है, 4800 करोड़ चले गए करंट अकाउंट से। बैलेंस करो, डिफरेंस आया 52 इस तरफ, क्योंकि बराबर करने। करंट में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट, वाइसा वर्सा भी हो सकता है। अगर करंट अकाउंट का अनफेवरेबल बैलेंस आया, इधर आया 12, इधर आया 10, 12,000, 10,000, तो हम इधर लिखेंगे 2,000। करंट में 2,000 क्रेडिट, करंट में 2,000 क्रेडिट, तो कैपिटल में 2,000 डेबिट हो जाएगा। हमारा करंट अकाउंट क्लोज हो गया। सी कैसे क्लोज करते हैं? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। All exports of goods, services and unilateral receipts are treated as positive items and hence recorded on the credit side of account. हम credit side का total करेंगे। All imports of goods, services and unilateral payments are recorded in the negative items and hence recorded on the debit side of the account. हम debit side का total करेंगे। Surplus in current account arises when credit items are more than the debit items. Credit ज़्यादा, debit कम है, तो favor surplus आ गया। Whereas deficit in current account arises when debit items are more than the credit items. That indicates net outflow of foreign exchange. अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो वो आउटफ्लो हो गया, पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है। सो यहां पर इसके सामने लिख लीजिए, मैं आपको फॉर्मूले में एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट, सम ऑफ क्रेडिट साइड आइटम्स, ये करंट अकाउंट क्लोज करना सिखा रहा हूं मैं। सेकंड, सम ऑफ डेबिट साइड आइटम्स, इसका टोटल करो, फिर इसका टोटल करो। थर्ड, फाइंड डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस, उसके आगे ए बी सी। डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, डेफिसिट, डेबिट इज लेस देन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट बड़ा है, ये साइड बड़ी है, सरप्लस, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, बैलेंस्ड, नो डेफिसिट नो सरप्लस। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दिस इज हाउ करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कूल। अब कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, दिस वी विल बी डूइंग टुमारो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पेंडिंग है। ये समझ तभी आएगा जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सो टुडे वी हैव डन व्हाट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, what is the difference between balance of payment and balance of trade, the two accounts, current account and capital account. We have done what is current account, how it is closed, current account क्या होता है, कैसे क्लोज होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है कर लिया, बट उसके भी एक कंपोनेंट पड़ा है और वो कैसे क्लोज होता है। वी विल बी डूइंग इट टुमारो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।